नमस्ते दोस्तों, वेलकम to Maths Shala. I'm Gauri Verma, your maths mentor. And today we are going to learn about graphical solution of linear inequality in two variables. Previous videos में हमने solution किया था linear inequalities का in one variable. तो आज two variable की equations inequalities को हमने करना है, तो जरा देखते हैं कि क्या है. Now see, any line in a plane can divide the plane into two parts और हम उसको बोलते हैं half plane. See, this is the vertical line and these are the Cartesian, and these are the this is the x-axis, this is y-axis, so this is the Cartesian plane. Vertical line divides the plane into two parts and this part is known as left half plane and this part is known as right half plane. Now if the line is vertical, this is right and left half plane. If the line is non-vertical line, then again it is dividing the plane into two parts. This is the upper part, this is the lower part. So I have written this is part 1, this is half plane part, and I have denoted it with 2. In these signs I have denoted. Now see, what is the solution of linear inequality? In case of equation, we get the solution on the line itself. But in case of inequality, we get the solution region either on this side, this half plane, or on the upper half plane. Linear inequality in two variable. Okay, हम इसके cases को discuss कर लेते हैं. See, this is the equation. All fine. Now this is inequality, strict inequality, and here it is left hand side is greater than equal to, I have written C लगा देते हैं यहाँ पर, and here it is less than C and here it is C less than equal to C. These are the strict inequalities and these are greater than equal to, less than equal to. ये strict inequality हम उनको नहीं बोलते हैं. These are the strict inequalities. अब देखेंगे कि इसमें और इनमें फर्क क्या रहता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में और ग्रेटर देन इक्वल टू या जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज नहीं है उनमें क्या फर्क रहता है. इन दिस केस सॉल्यूशन लाइज ऑन द लाइन इटसेल्फ एंड ऑन ईदर साइड ऑफ द लाइन आल्सो. रीजन में मिलेगा और सॉल्यूशन लाइन के ऊपर भी मिलेगा. इन दिस केस वी ड्रॉ द लाइन इन अ डार्क मैनर, पूरी डार्क लाइन हम लगाते हैं. And in case of strict inequality, जो solution region है, it is on the either side of the inequality, either side of the line, जो उसको satisfy कर रहा होगा, but not on the line itself. So उस केस में हम लाइन को dotted line से या थोड़ा light color से show करते हैं. So अब हम इसको चेक करते हैं कि it is very simple कि solution region कहाँ लाई कर रहा है. इसको चेक करना बहुत आसान है. हम एक पॉइंट उठा लेते हैं, पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे. जिस भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन हमें देखना है हम पहले उसकी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन वी टेक एनी पॉइंट इन द प्लेन. लाइन के किसी भी एक हाफ में हम पॉइंट उठा लेंगे अदर देन द लाइन, जो भी पॉइंट लाइन के ऊपर ना हो कोई पॉइंट उठा लेंगे और हम देखेंगे कि क्या वो उस इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई करता है. तो ऐसा करते हैं, जर्नल से ज्यादा अच्छा हम एक एग्जांपल लें. आप टेकन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 6.3. सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. 6.2 का क्वेश्चन है ये. x plus y is greater than 5. Now to find the solution graphically we need to draw the line. पहले हम ये लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं एंड यू नो हाउ टू ड्रॉ द लाइन. आपने 9th क्लास में 8th क्लासेस में सीखा है इन टू वेरिएबल को ड्रॉ करना. सो विल गेट द लाइन सी y इज इक्वल टू 5 माइनस x, ऐसे लिख लेंगे. एक टेबल बना लें, बिना टेबल बनाए भी आप कर सकते हैं बिकॉज आपने इट्स वेरी सिंपल. तो चलिए खैर सिंपल वे से करते हैं. y इज इक्वल टू 5 माइनस x और टेबल बनाया. व्हेन x इज 0 y इज 5, व्हेन x is 5 y is 0. so simple table and now draw the line. हमने ड्रॉ मैंने पहली लाइन आपके लिए ड्रॉ करके रखी है. so this is the line. now check where is the solution region. अच्छा देखिए ये strict inequality है तो हम लाइन को थोड़ा डॉटेड उसमें दिखा लेते हैं. इसको डॉटेड उसमें दिखाते हैं. ओके, नाउ वेयर इज द सॉल्यूशन रीजन. इसको चेक करने का बहुत आसान वे ये है
कि हम ऐसे करें, पहले इनइक्वालिटी को लिख लें, इनइक्वालिटी लिख ली और अब किसी एक साइड के पॉइंट को उठा लें और सबसे अच्छा तरीका है कि आप ओरिजिन को उठाएं। ओरिजिन इस साइड पर है लाइन के और हम देखते हैं ओरिजिन पर चेक करते हैं इसको, चेक इट ऑन द ओरिजिन लिख लेना, चेक इट ऑन द ओरिजिन। मेरे पास स्पेस कम है, मैं नहीं लिख रही हूँ। तो 0 प्लस एक्स इज 0 वाई 0 ग्रेटर देन 5, ये इनइक्वालिटी एज इट इज ऐसे लिख देंगे। एक्स की जगह पर 0 डाला, वाई की जगह पर 0 डाला, ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन, आर इक्वल टू 5। नाउ 0 ग्रेटर देन 5। अब देखिए, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? दिस इज नॉट ट्रू, मीन्स दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है। इफ इट इज फॉल्स, इट मीन्स सॉल्यूशन रीजन does not contain the origin, मीन जो हमारा सॉल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन के टुवर्ड्स नहीं है, इट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मीन्स इस हाफ प्लेन में हमारा सॉल्यूशन रीजन लाई करता है। तो मैं इसको एक बड़ा अच्छे से बता इसका वो देती हूँ कि इफ इट इज f मीन्स false, it is far from origin, if it is true then it is towards origin, तो our solution region is away from origin. This is in this half plane the solution region lies. So just have a look and we'll move to the next question. Okay students, let's take, this is question number 8 from 6.2. Now what is the question? Solve this inequality into variable graphically. So 3y minus 5x strictly less than 30. So to find the solution graphically we need to draw this line. ये draw line करनी ही पड़ेगी। तो चलिए, क्योंकि graphically चाहिए हमें, तो just form the table to get the line. तो हमने we have written this y is equal to 30 plus 5x by 3, इस यहाँ से ये रिजल्ट निकाल लिया, टेबल बनाया। नाउ ड्रॉ दिस लाइन, मैंने ये पहले से आपके लिए ड्रॉ करके रखा है। सो वी नीड द पॉइंट 0 and 10, दिस इज पॉइंट 0 10, this is 0, x is 0, y is 10 and this is the point where x is minus 6 and y is 0. We have got the line. अब हमारा बेसिक पर्पस, अब हमारा पर्पस क्या है कि हमने सॉल्यूशन रीजन देखना है, वेदर in this half plane or in this half plane solution region is. तो चेक करना है, very simple it is, just write the inequality as it is. मैंने डॉटेड लाइन लगाई बिकॉज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, सॉल्यूशन रीजन लाइन के ऊपर बिल्कुल नहीं है और इधर ऑन दिस साइड और ऑन दिस साइड। तो देखते हैं कौन सी साइड इसको सेटिस्फाई करती है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ओरिजिन को उठा लें और देखें कि ओरिजिन इसको सैटिस्फाई करता है या नहीं करता। सो चेक द ओरिजिन, तो चेक करेंगे तो मीन्स y इज 0 minus 5 into 0 less than 30. Now what is it? 3 into 0, 5 into 0 less than 30 means 0 is less than 30. अब बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है? इट इज ट्रू, 0 लेस देन 30 होता है, ठीक है, तो ये ट्रू है। अब ट्रू है इट मीन्स सॉल्यूशन रीजन इज टुवर्ड्स ओरिजिन। अब हमारा सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की तरफ है। पिछले केस में हमारा क्या था? हमारा सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की तरफ नहीं था, इट वॉज नॉट टुवर्ड्स ओरिजिन, इट वॉज फार फ्रॉम, फॉल्स था वो, तो फार फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो वो ओरिजिन को इंक्लूड नहीं कर रहा था। दिस टाइम आवर सॉल्यूशन रीजन इज ऑन दिस साइड। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 इक्वेशंस एक साथ, इनइक्वालिटीज एक साथ कैसे सॉल्यूशन रीजन उसमें फाइंड आउट करना है वो देखेंगे। तो जस्ट हैव अ लुक और आप इसी से अच्छे से नोट्स बनाइएगा और बाकी के क्वेश्चंस you solve, to try to solve those question of exercise 6.2 yourself, and if you find any problem write in the comment section and keep watching Mathshala, subscribe Mathshala। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना। Stay at home, stay healthy।